So guys, this is our next topic, that is called as disinfection. And disinfection is more important in our routine life as well as in the pharmaceutical industry. You all are aware about that there are different type of disinfectants which are being used in the market for the disinfection process, isn't it? And that disinfectants have wide range of killing the disinfectant, mode of action of disinfectant, factors affecting on disinfection, and evaluation of antimicrobial agent and disinfectants. So let us come to the terminology. First terminology, that is called as sepsis. Sepsis means, it is called as bacterial contamination. Means if a person having wound on his body, एखाद्या ठिकाणी जखम झालेली असेल, if that wound is filled with pus formation will be there, that is called as, it is contaminated with bacteria, or we can say that it is considered as sepsis. Then next is asepsis. Asepsis means absence of significant contamination, means there is absence of microorganisms. Then next is antisepsis. Antisepsis means against the organisms, chemical destruction of vegetative pathogens on living tissues. अँटीसेप्टिक हे असे पदार्थ आहेत जे लिव्हिंग टिश्यूवर, म्हणजे माणसाच्या, आपण काय करतो, अँटीसेप्टिक घेतो हातावर, जखमेवर लावतो अँटीसेप्टिक, इजंट इट, ऑन लाईव्ह टिश्यू, आणि त्याच्यावर जखमेवरचे जे काही ऑर्गॅनिझम आहेत ते अँटीसेप्टिकने मरतात, इजंट इट. दॅट इज कॉल्ड एज केमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पॅथोजन. त्याच्यानंतर आहे सॅनिटायझेशन. सॅनिटायझेशन इज व्हॉट? लोअरिंग मायक्रोबियल काउंट ऑन ईटिंग अँड ड्रिंकिंग युटेन्सिल्स ॲट सेफ लेवल. सेफ लेवल म्हणजे ऑर्गॅनिझमचं पॉप्युलेशन कमी करायचं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजीज आहेत त्या सिडल ॲक्टिव्हिटीच्या. सिडल ॲक्टिव्हिटी म्हणजे काय? केमिकल एजंट दॅट इज कॅपेबल ऑफ किलिंग बॅक्टेरिया. जिथं जिथं सिडल शब्द आहे, सिडल, बॅक्टेरिसिडल इज कन्सिडर्ड ॲज किलिंग ऑफ बॅक्टेरिया. Virucidal is considered as chemical agent capable of killing viruses. Fungicidal, chemical agent capable of killing fungi. Sporicidal, chemical agent capable of killing spores, isn't it? And then bacteriostatic. What is the bacteriostatic? Bacteriostatic is here that organism is not killing the bacteria, only inhibiting the growth. म्हणजे मारायचं नाही, पण त्याची वाढ थांबवायची, isn't it? Bacteriostatic means it is inhibiting the growth, that chemical is not allowing that bacteria to grow further, but not killing the microorganism. म्हणजे मारायचं नाही पण वाढू पण द्यायचं नाही. Then introduction to the disinfectants. Disinfectants is the process of destruction or removal of microorganisms and reducing them to the level like not harmful to the human health. Means we are reducing the microbial population, or reducing the microbial population which is not harmful to the human health, isn't it? त्याला आपण डिसइन्फेक्शन म्हणतो, isn't it? Disinfection is generally kills the sensitive vegetative cell but not heat resistant endospores. डिसइन्फेक्टेंट क्या करते हैं? डिसइन्फेक्टेंट क्या करते हैं? वो सारे ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं, लेकिन एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर, they are unable to kill them. If the object is inanimate, lifeless, such as working areas, dishes, branches, benches, etc., the chemical agent is known as disinfectant, isn't it? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम अगर कोई केमिकल यूज़ करते हैं, वर्किंग एरिया पे, डिश पे, बेंच पे, तो उस केमिकल एजेंट को हम डिसइन्फेक्टेंट बोलते हैं. डिसइन्फेक्टेंट मतलब लाइजॉल जो हमारे घर में होता है ना, उसको हम डिसइन्फेक्टेंट बोलते हैं. हावेवर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एनिमेट, अगर हम हमारे हाथ पे जो केमिकल यूज़ करते हैं, मतलब आदमी पे, एनिमल पे, ह्यूमन बॉडी पे, तो दैट केमिकल इज़ नॉन एज एंटीसेप्टिक. मतलब एंटीसेप्टिक में और डिसइन्फेक्टेंट में फ़र्क क्या है? डिसइन्फेक्टेंट ऐसी चीज़ है जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब डिसइन्फेक्टेंट आर यूजुअली बैक्टीरियासिडल बट ऑकेजनली दे में भी बैक्टीरियोस्टैटिक. कभी कभी डिसइन्फेक्टेंट बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादातर वो बैक्टीरियोसिडल होता है, मतलब किल करता है, बट कभी कभी वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है.
आइडियल डिसइंफेक्टेंट शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब उसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है आइडियल डिसइंफेक्टेंट, जैसे मैंने बताया आपको कि आइडियल डिसइंफेक्टेंट में कौन से अच्छे गुणधर्म होने चाहिए। तो इट शुड हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो उसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो फास्ट एक्टिंग होना चाहिए, वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसको कोई बास नहीं आना चाहिए, एक्टिंग फास्ट करना चाहिए, उसने फटाफट ऑर्गेनिज्म को मारना चाहिए, उसका टॉक्सिक एक्शन नहीं होना चाहिए। सरफेस कॉम्पेटेबिलिटी, उसको सरफेस के साथ, मतलब जो सरफेस के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके कॉम्पेटेबल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए, इजी टू यूज़, हर एक को यूज़ करने आना चाहिए। देन सोल्यूबल एंड मिसिबल, सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए। नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल फैक्टर्स, दूसरे कोई फिजिकल फैक्टर से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड स्टेबल ऑन स्टोरेज, और स्टोरेज के बाद अच्छी तरीके से स्टेबल रहना चाहिए। केमिकल डिसइंफेक्टेंट क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग तरीके का होता है, 3 अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। वो कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। पहला है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, मतलब लिक्विड एंड सॉलिड, इजंट इट। लिक्विड में क्या आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं, फिनॉल आते हैं। सॉलिड में क्या क्या आता है, गैस, सॉरी, लिक्विड एंड गैसेस आता है, लिक्विड एंड गैसेस। तो लिक्विड में क्या क्या आते हैं, अल्कोहल एंड फिनॉल्स, एंड दूसरे क्या आते हैं गैसेस में, फॉर्मेलिन गैस एंड इथिलीन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, सबसे अच्छा कौन है, ऑलराउंडर जैसे मैंने ना, हाई लेवल, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल, और उसके बाद लो लेवल, इजंट इट। तो सबसे ज़्यादा मतलब 10 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को मारता है, उसको बोलते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इजंट इट। उसके बाद दूसरा आता है वो 5 ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 ही और है उसकी, उसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन होता है, इजंट इट। मैकेनिज्म एक्शन क्या है हम देख सकते हैं। एक्शन ऑन मेम्ब्रेन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई एक्शन करता है तो उसको बोलते हैं एक्शन ऑन मेम्ब्रेन्स, और उसमें आते हैं अल्कोहल एंड डिटर्जेंट, मतलब साबुन जो होता है जिससे हम हाथ धोते हैं। तो ऑर्गेनिज्म, मेरे हाथ पे जो ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को वो मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे काम करता है साबुन। साबुन क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्शन ऑन मेम्ब्रेन। देन डीनेचुरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स, अल्कोहल एंड फिनॉल उसके सेल के अंदर के जो प्रोटीन्स रहते हैं अलग अलग, उसको डीनेचुरेट करते हैं। देन ऑक्सीडेशन ऑफ इसेंशियल सल्फ हाइड्रिल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के अंदर के सल्फ हाइड्रिल ग्रुप वो कौन से होते हैं, एसएच ग्रुप होता है, और वो कहाँ होते हैं, वो मिथियोनिन और सिस्टीन अमाइनो एसिड में होते हैं। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हैलोजन का काम है, ये काम करते हैं। क्या करते हो, क्या करते हैं, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। बाद में डैमेज टू द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करने वाले भी अमाइनो एसिड्स है, वो कौन से, सॉरी, डिसइंफेक्टेंट है, इथिलीन ऑक्साइड एंड फॉर्मेलिन गैस, फॉर्मेल्डिहाइड। गैस बेस्ड जो स्टरलाइजिंग एजेंट है, तो गैस बेस्ड स्टरलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो गैस बेस्ड स्टरलाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी का वो किस किस को मार सकता है, मतलब हाई लेवल, या उसको हम बोलते हैं ब्रॉड, इजंट इट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं उसको, तो वो वेजिटेटिव सेल को भी मार सकता है, माइकोबैक्टीरिया को भी मार सकता है, स्पोर को भी मार सकता है, फंगाई को भी मार सकता है, वायरस को भी मार सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इथिलीन ऑक्साइड गैस, ग्लूटराल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल का। इंटरमीडिएट लेवल का क्या करता है, इधर देख लीजिए, सिर्फ वेजिटेटिव सेल को मारता है, माइकोबैक्टीरिया को मारता है, स्पोर्स को नहीं मारता है, स्पोर को नहीं मारता है। उसके बाद आता है फंगाई, फंगाई को मारता है। उसके बाद वायरस को मारता है, इजंट इट। तो ये हो गई डिफरेंट अलग अलग चीज़ें, तो इस चीज़ों को वो मारता भी है, इजंट इट। उसके बाद लो लेवल का होता है। लो लेवल का क्या होता है, क्या होता है लो लेवल का, लो लेवल का क्या होता है, इट हैज़ एबिलिटी टू किल ओनली फीवर ऑर्गेनिजम्स, वो फीवर कम से कम ऑर्गेनिज्म को मारता है। यहाँ देख लीजिए, सिर्फ वेजिटेटिव सेल को और फंगाई को, और कभी कभी वायरस को मार भी सकता है या तो नहीं भी सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, एक एक करके हम देख रहे हैं, उसके एक एक करके देख रहे हैं हम अलग अलग एजेंट्स। थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ जो आपको देखने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, अल्कोहल्स। अब यहाँ जो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, हम जो नॉर्मल सैनिटाइज़र में यूज़ करते हैं वो अल्कोहल होता है। मोड ऑफ एक्शन क्या करते हैं, अल्कोहल क्या करता है, अगर हमने अल्कोहल हमारे हाथ पे ले लिया तो हमारे हाथ के ऊपर के जो ऑर्गेनिज्म है उसका, उसके साथ क्या होगा,
अल्कोहल से उसके साथ क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ सेल, उसके अंदर सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा, उसके सेल का मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगा, और कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन का कोआगुलेशन होगा। तो मतलब 3 अलग अलग एक्शन हो जाएंगे बैक्टीरिया के ऊपर, एक्शन नंबर 2 और एक्शन नंबर 3। क्या क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रेशन होगा, डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगा, और कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन होगा। अल्कोहल में कौन से अल्कोहल हम यूज़ कर सकते हैं सैनिटाइजेशन इंडस्ट्री के लिए? इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स वी कैन यूज। 70 ml अल्कोहल और 30 ml पानी H2O। तो अगर इस कॉम्बिनेशन को हमने यूज़ किया तो सबसे अच्छा काम करेगा। इट इज़ यूज्ड इन एंटीसेप्टिक ऑन स्किन के लिए यूज हो जाएगा इथेनॉल। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सरफेस के डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ किया जाएगा, एंड फंगल स्पोर्स को मारने में यूज़ किया जाएगा। हेंस इट इज़ यूजफुल इन डिसइंफेक्शन ऑफ इंक्यूबेशन हुड्स, इंक्यूबेशन के हुड का डिसइंफेक्शन करने के लिए भी उसका यूज़ हो जाएगा। इधर देख लीजिए, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? स्किन इरिटेंट, वोलाटाइल, evaporate rapidly, and it is inflammable, means that alcohols are prone to catch the flames, isn't it? They are more flammable, or we can say that they are dangerous in nature. Then come to the next important agent, that is aldehydes. As per classification, aldehydes are gases in nature, and they are having capability to act on the genetic material of the bacteria. अगर हमने किसी मटेरियल को अल्डिहाइड के गैस में, फॉर्मेलिन गैस में स्टरलाइज किया, तो वो सारे मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में गिना जाता है। ये अल्काइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, देन कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डैमेज टू द न्यूक्लिक एसिड एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर। तो स्पोर के साथ सारी चीज़ों को ये मार देते हैं। एग्जाम्पल ये मैंने आपको बता दिया है, formaldehyde and glutaraldehyde. This is the example. 40% formaldehyde, formalin is used for surface disinfection, fumigation of rooms. मैंने जो एडलर में शुरू किया था तो पहली बार वो ऐसे ही किया था कि फ्यूमिगेशन का रूम का फ्यूमिगेशन करने के लिए हम फॉर्मेलिन गैस यूज़ करते थे। चेम्बर ऑपरेशन, देन ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइज करने, फॉर्मेलिन विथ पैराफॉर्मेल्डिहाइड, ट्रीटिंग फॉर्मेलिन विथ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एंड फॉर्मेलिन अगर हमने एक डिश में डाल दिया, जैसे हमने एक डिश ले ली, उसमें वो पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और उसके ऊपर फॉर्मेलिन का लिक्विड डाल दिया, इधर क्या होगा, अंदर क्या होगा, KMnO4 के पोटेशियम परमैंगनेट, और ऊपर से लिक्विड क्या डाल दिया, फॉर्मेलिन। तो यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 ऑक्सीडाइज करेगा किसको, फॉर्मेलिन को, और फॉर्मेलिन का गैसेस में कन्वर्जन हो जाएगा। इस तरीके से वो काम करता है। ओके, तो फ्यूमिगेशन इज अचीव्ड बाय बॉइलिंग फॉर्मेलिन को बॉयल कर दीजिए या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट कर दीजिए। इट इज़ ऑल्सो स्टरलाइज्ड, यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ बेडिंग, मतलब बेड जो होते हैं ना, खराब हुआ बेड, फर्नीचर के स्टरलाइजेशन के लिए, बुक्स के स्टरलाइजेशन के लिए। 10% फॉर्मेलिन विद 0% टेट्राबोरेट स्टरलाइज क्लीन मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, वो मेटल के इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होगा। 2% ग्लूटाराल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोमीटर्स, साइटोस्कोप्स, ब्रोंकोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, एनास्थेटिक इक्विपमेंट, एनास्थेशिया देने वाले इक्विपमेंट है उसको, इजंट इट। देन एन exposure at least for 2 to 3 hours in alkaline pH required for action of glutaraldehyde 2% or formaldehyde 40% for 20 minutes, isn't it? So at least 3 hour exposure should be there and alkaline environment should be there, so then and then they act in a very efficient manner. Let us come to the disadvantage. These vapors are irritating, they must be neutralized by the ammonia. स्टरलाइजेशन के वेपर को हम अमोनिया से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इट हैज़ वेरी पुअर पेनिट्रेशन, लीव्स नॉन वॉलेटाइल रेसिड्यू, एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है। ग्लूटाराल्डिहाइड रिक्वायर अल्कलाइन पीएच एंड ओनली कर सकते हैं। उसके बाद है फिनॉल। You all are aware that phenol is used for our routine practices all over the India, isn't it?
usually phenol, Lysol, what we are using in our routine day-to-day activities at home sanitization or home disinfection. Apart from that, phenol is also present in soap solutions also, isn't it? So क्या करता है फिनॉल, अगर हम यूज़ करते घर पे टॉयलेट साफ़ करने के लिए या किचन कैबिनेट साफ़ करने के लिए, तो क्या करता क्या है वो, उसके साथ होता, उसके वजह से होता क्या है, तो सेल डिसरप्शन होता है मेम्ब्रेन का, देन प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, और इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये तीन चीज़ें होती है। क्या होगा, क्या है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन हो जाता है, प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन हो जाता है, इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। 5% फिनॉल, 1 to 5% क्रिसॉल, 5% लाइजॉल, सॅफोनिफाइड क्रिसॉल, हेक्साक्लोरोफिन, क्लोरहेक्झिडीन, सायक्लोझायलेनॉल, दॅट इज कॉल्ड ॲज डेटॉल. डेटॉलमध्ये सायक्लोझायलेनॉल असतो. तर असे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काय आहेत हे डिसइन्फेक्टंटचे प्रकार आहेत जे आपल्याला रुटीन लाईफमध्ये वापरले जातात. ओके, मग ॲप्लिकेशन काय आहेत? जोसेफ लिस्टरने फर्स्ट यूज्ड सर्जिकल म्हणजे एखाद्याची सर्जरी स्वच्छ करायची असेल आणि सर्जरी झालेल्या ठिकाणी, कापलेल्या ठिकाणी, शरीरात सर्जरी जिथे झाली तिथे इन्फेक्शन होण्यासाठी होऊ नये यासाठी काय केलं त्यांनी? फिनॉल वापरला होता त्यांनी, कोल tar डेरिव्हेटिव्ह. आणि तेव्हा त्या जोसेफ लिस्टर नावाच्या सायंटिस्टला लक्षात आलं की फिनॉल काय करतो, ती जखम स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. देन they mycobactericidal are inactive against spores and most viruses. They are not readily inactivated by organic matters. त्याच्यानंतर give its activity, it should not be present or it should not be associated with organic matter. Then they are not inactivated, they are corrosive phenolics are used for disinfection of floor wards, हॉस्पिटल के वार्ड्स को यूज़ कर सकते हैं हम. उसके बाद लेबोरेटरीज एंड डिसइंफेक्शन ऑफ बेड पैंस कौन से होते हैं? हॉस्पिटल के बेड पैंस होते हैं. उसके बाद क्लोरहेक्सिडिन कैन बी यूज्ड फॉर इन आइसोप्रोपिल सॉल्यूशन फॉर स्किन डिसइंफेक्शन, इजंट इट. वुंड इरिगेशन मतलब जख्म को साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम. एंटीसेप्टिक इन हैंड वॉश में यूज सकते हैं. क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट सोल्यूशन और प्री ऑपरेटिव एंड स्किन प्रिपरेशन फॉर जनरल स्किन डिसइंफेक्शन. देन उसके साथ अलग अलग है. क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट इज मिक्सड विद क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड सेट्रीमेट टू गेट स्ट्रॉन्गर ब्रॉड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. सेवलन जो हम वापर यूज़ करते हैं ना. उसके बाद है क्लोरहेक्सिडिन आर लेस इरिटेंट बिकॉज इट इज टॉपिकल पर्पज आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो ये जो क्लोरहेक्सिडिन ज़्यादा साइक्लोझाइलेनॉल वगैरह ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा एक्टिव. देन hexachlorophene is chlorinated by diethylene acid and much less irritant. It is marked effect on against gram positive bacteria, poor effect on gram negative bacteria. Positive bacteria and effective in some extent against gram negative bacteria including Pseudomonas. Pseudomonas is a gram negative species. It is also has a fair activity on fungi and viruses. Fungi and viruses के साथ भी उसका fair activity है. Disadvantage क्या है? It is a corrosive, skin irritant and toxic. क्लोरहेक्सिन इज इनएक्टिवेटेड बाय एनानिक सोप एंड क्लोरोजहाइलोन इज इनएक्टिवेटेड बाय हार्ड वाटर के साथ और एनानिक सोप के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद है हैलोजेंस. उसके बाद क्या है? हैलोजन यू ऑल आर अवेयर दैट आयोडीन टिंक्चर जो हम जख्म देख लीजिए. हैलोजन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? इट इज कॉज्ड यूज्ड फॉर oxidation of self hydrolyl group in the enzyme. Chlorine reacts with water, hypochlorous acid and microbicidal. वो क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के काम करता है और डैमेज टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइडिल ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स. मतलब हमारे एंजाइम में जो कॉमन सेंस है, एंजाइम किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से. अमीनो एसिड में क्या होता है? मिथियोनिन नाम का एक एसिड होता है, अमीनो एसिड, सिस्टीन नाम का एसिड होता है. इसमें क्या होता है? सल्फाइडिल ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, मिथियोनिन एंड सिस्टीन. तो उसका डैमेज हो जाता है. अगर उसका डैमेज हो गया सल्फाइडिल ग्रुप का, तो ये अमीनो एसिड का डैमेज हो गया. अमीनो एसिड का डैमेज हो गया तो एंजाइम का डैमेज हो गया, इजंट इट. उसके बाद यह देख लीजिए. आयोडीन कैन बी कंबाइंड विथ न्यूट्रल कैरियर पॉलीमर सच एज पॉलीविनाइल पायरोलिडोन. अलग पॉलीविनाइल पायरोलिडोन. प्रिपेयर आइडोफोर सच एज प्रोविडोन आइडोफोर. प्रोविडोन आइडोफोर का नाम का जो पाउडर आता है वो मार्केट में बहुत फेमस है. आइडोफोर परमिट
10% स्लो रिलीज एंड रिड्यूस द इरिटेशन ऑफ एंटीसेप्टिक, वो स्लो रिलीज करता है। डायरेक्ट आयोडीन टिंचर किया तो बहुत जल जाता है या बहुत स्किन इरिटेशन मिलता है। हैंड वॉशिंग ऑफ आयोडोफोर आर डाइल्यूटेड एट 50% अल्कोहल, 10% प्रोविडन आयोडीन इज यूज्ड अनडाइल्यूटेड इन प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्किन इन्फेक्शंस डिसइंफेक्शन। मतलब ऑपरेशन के पहले जो स्किन साफ़ करनी है उसके पहले या ऑपरेशन के बाद स्किन साफ़ करनी है, दोनों जगह वो यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग द वाटर। क्लोरीन एसिड आपको मालूम है रेनी सीजन में क्लोरीन डालते हैं पानी में। हाउस होल्ड ब्लीच कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फ्लोर्स। देन हाउस होल्ड हाइपोक्लोराइड वो सभी सारी जगह स्प्रिंकल किया जाता है कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन के लिए। यूज एट ए डायल्यूशन ऑफ 1:10। डिकॉन्टेमिनेशन प्रोसेस के लिए, इन्फेक्शियस मटेरियल को मारने के लिए, खराब स्वच्छ करने के लिए। देन mercury chloride is used as a disinfectant also. Then next important point, this that they are rapidly inactivated in presence of organic matter. Means whatever the disinfectant which you use, if they are in presence of, or like if our organisms are present on woody material or human body, so you of course that woody material or human body is composed from the carbohydrate, or it is made up from the carbohydrate, and in such case if you apply the disinfectant, it is inactivated by the presence of such material. Then next, iodine is a corrosive and staining. Bleach solution is corrosive and corrode stainless steel surfaces. स्टेनलेस स्टील को corrode कर सकता है। उसके बाद है heavy metals. Heavy metals क्या है? What are the heavy metals? Heavy metals क्या करते हैं? पहले ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइडल ग्रुप एंड दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन से काम करते हैं। उसमें क्या आता है? मर्क्यूरी क्लोराइड आता है, सिल्वर नाइट्रेट आता है, कॉपर सल्फेट आता है, ऑर्गेनिक मर्क्यूरिक साल्ट आता है, मर्क्यूरोक्रोम बोलते हैं हम उसको। 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द आई ट्रीटमेंट फॉर ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम। मतलब आइज में डालने के लिए वो हम क्या करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल देते हैं। प्रोसीजर इज नो लॉन्गर फॉलोड। सिल्वर स्टैंडर्डाइज is used topically to help the prevent colonization and infection of burn tissues। मतलब जो जला हुआ व्यक्ति है जिसको आग से मतलब वुंड हुए हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। 1 ग्राम मर्क्यूरी ले लीजिए और उसको 500 ml पानी में डिजोल्व कर दीजिए, तभी वो उतनी एक्टिविटी पोटेंट दिखाएगा। देन merthiolate at a cover concentration of 1:10,000 is used for prevention of serum. Copper salt are used as a fungicide. Copper salt भी हम fungicide बोल के यूज़ करते हैं। Mercury chloride is highly toxic and it is readily inactivated in presence of organic matter, isn't it? Mercury chloride क्या है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और वो क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होता है? इनएक्टिवेट हो जाता है, isn't it? सरफेस एक्टिव एजेंट्स, हम उसको सोप सोल्यूशन बोलते हैं। सरफेस एक्टिव एजेंट बोले तो क्या? सोप सोल्यूशंस बोलते हैं हम। सोप सोल्यूशन क्या करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, isn't it? मोड ऑफ एक्शन क्या करते हैं? These compounds have long chain hydrocarbons called as fat and charged ions and water soluble. Since they contain both of these, concentration of surface membrane disrupt the cell membrane, resulting in leakage of cell constituent. सेल कॉन्स्टिट्यूएंट लीकेज हो जाते हैं। जैसे हम सोप से हाथ धोते हैं, जैसे मैंने संडे को सोप से बहुत सारे कपडे धो दिए तो मेरा हात का पूरा टेक्स्चर खराब हो जाता है। मतलब जर आपण कपडे धुतले, रविवारी समजा हॉस्टेलला राहतो आणि रविवारी भरपूर कपडे धुतल्यानंतर हात जर वाळला तर आपल्या हाताला सगळ्या सुरकुत्या पडलेल्या असतात। इट मग त्याचा अर्थ काय की सेलवॉलमधून सगळं प्रोटीन निघून गेलं कपडे धुत असताना साबणामुळे, इजंट इट? तर ते दॅट इज द रिझन ओव्हर दिस प्लेस। त्याच्यानंतर एक्झाम्पल्स, द सोप्स अँड डिटर्जंट्स कॅन बी एनायनिक और कॅटायनिक। डिटर्जंट कंटेनिंग निगेटिव्हली चार्ज्ड लॉन्ग चेन हायड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ॲज एनायनिक सल्फेट डिटर्जंट्स। is made of to have a positive charge and combining with quaternary nitrogen atom, it is called as cationic detergent.
Cationic detergent is known as quaternary ammonium compound quat, cetrimide and benzalkonium chloride and cationic detergent. एप्लीकेशन क्या है इसके देख लीजिए. वेजिटेटिव सेल को मारने के लिए एप्लीकेशन है पहले, माइकोबैक्टीरिया एंड इवोल्व वायरस स्टडी के लिए. दे आर एक्टिवली यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एट डायल्यूशन ऑफ 1 to 2% डोमेस्टिक यूज इन द हॉस्पिटल में भी यूज़ किया जाता है उसको. ओके. डिसएडवांटेज क्या है? इट्स एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय हार्ड वाटर के सामने, ये तो पहले ऑलरेडी बताया है, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है. एनायनिक डिटर्जेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर. सीडोमोनास कैन बी मेटाबोलाइज्ड यूजिंग सिट्रीमिड यूजिंग एज अ कार्बन सोर्स. मतलब सीडोमोनास नाम का ऑर्गेनिज्म जो है वो सिट्रीमिड नाम का कार्बन खाता है. इसके ऊपर हम जजमेंट कर सकते हैं. ओके. उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट डाइज. ओके. तो डाइज हम ये चारों ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम देख लेंगे फैक्टर्स. डाइज क्या होते हैं? मोर एक्रिडिन डाइज होता है, बैक्टीरियल यूज़ करते हैं स्टेनिंग में. एक्रिडिन डाइज जो है ना, हमारे यहाँ अलग अलग डाइज होते हैं. इंटरेक्शन विद बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं. एनिलिन डाई सच एज क्रिस्टल वायलेट, मैलाकाइट ग्रीन, ब्रिलियंट ग्रीन. एक्रिडिक डाइज सच एज एक्राफ्लाविन, अमीनैक्रिन, एक्रीफ्लाविन मिक्सचर और प्रोफ्लाविन एंड यूफ्लाविन. ये अलग अलग टाइप के एंटी वी कैन से दे आर द डाई सब्सटेंसेस. ओनली यूफ्लाविन हैज़ इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. उसके अंदर जो यूफ्लाविन है उसकी सबसे अच्छी एक्टिविटी है. ए रिलेटेड डाई okay. Say ethidium bromide is also used for staining in the genetic material, so it is also considered as potent germicidal agent. Then it interact with the DNA pairs. So these ethidium bromide like material having capability to interact with the genetic material, isn't it? So active against gram positive bacteria and then gram negative bacteria से थोड़ा ज़्यादा एक्शन है एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन क्रिएट करता है. एप्लीकेशंस क्या है देख लीजिए. They may be used topically as antiseptic to treat mild burns. Mild burns को ये ट्रीट करने के लिए होता है. They are used as a paint on the skin. मतलब स्किन को कलर करते हैं. ऑफकोर्स डाइज है तो वो कलर ही करेंगे, स्किन को एक स्पेसिफिक कलर देंगे. ट्रीट बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन. दे डाइज आर यूज्ड एज अ सेलेक्टिव एजेंट इन सर्टन मीडियाज. मतलब सेलेक्टिव एजेंट बोल के भी काम करते हैं. उसके बाद है लास्ट वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड. हमको सबको मालूम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का काम क्या है. हम जख्म क्लीन करने के लिए, पस फॉर्मेशन जहाँ उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू इट्स रिलीजेस द नेसेंट ऑक्सीजन. रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल देन डैमेज द प्रोटीन एंड डीएनए और प्रोटीन को डैमेज करता है. एप्लीकेशन क्या है उसके? इट इज़ यूज्ड एट 6% कॉन्सेंट्रेशन टू डिकॉन्टेमिनेट इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स सच एज वेंटिलेटर जो यूज़ करते हैं ना हम कोरोना में. हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर स्किन डिसइंफेक्शन, डीओडोराइजिंग, किसी चीज़ से बास आ रहा है तो उसको स्टोर करने के लिए. लाइट के साथ डिकम्पोज होता है. ब्रोक डाउन बाय कैटालिसिस एंजाइम उसको तोड़ सकता है. प्रोटीनेसिस ऑर्गेनिक मैटर इज ड्रास्टिकली रिड्यूस द एक्टिविटी. ऑर्गेनिक मैटर के साथ में वो उसकी एक्टिविटी खुद की बहुत कम कर लेता है. उसके बाद है इथिलीन ऑक्साइड. इथिलीन ऑक्साइड गैस है, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. और ये जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको नीचे, उसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन भी आता है, इजंट इट. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है. ओके. तो देख लीजिए इथिलीन ऑक्साइड गैस. मोड ऑफ एक्शन अल्कलाइटिंग एजेंट है, मतलब डीएनए और आरएनए के साथ वो एक्ट हो जाता है. एक्ट बाय अल्कालाइटिंग सल्फाइड्रिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड के ऊपर ये ग्रुप होते हैं, इजंट इट. एनएच ग्रुप, एसएच ग्रुप, COOH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप. ये चारों ग्रुप अमाइनो एसिड पे होते हैं. प्रॉपर्टीज क्या है? साइक्लिक मॉलिक्यूल है. इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है? CH2, ये हो गया O. तो ये हो गया इथिलीन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इजंट इट. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्वीट इथरल ऑर्डर. इथर के जैसा ऑर्डर है
एंड फ्लेमेबल भी है। एप्लीकेशन कैसा करना है ये देख लीजिए। इट इज़ केमिस्टरलेंट कैपेबल ऑफ किलिंग स्पोर्स रैपिडली सिंस इट इज़ हाईली फ्लेमेबल इट इज़ यूजुअली कंबाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लेमेबल होने की वजह से उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया जाता है। 10% CO2 और 90% इथिलीन ऑक्साइड और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी लगती है उसको। इट हैज़ इन गुड पेनिट्रेटिंग एजेंट and well absorbed by the material. It is also used for sterilization of heat liable and material and bedding, टेक्सटाइल मटेरियल, रबर स्टरलाइज करण्यासाठी, प्लास्टिक स्टरलाइज करने के लिए, सिरिंज स्टरलाइज करने के लिए, डिस्पोजेबल पेट्री डिश स्टरलाइज करने के लिए। हार्ट लंग मशीन जो होती है ना, हार्ट लंग, जब किसी व्यक्ति का हार्ट एंड लंग दोनों भी फेलियर हो जाता है तो उस टाइम में मशीन बिठाई जाती है, उसको हार्ट लंग मशीन बोलते हैं। तो उसको स्वच्छ करने के लिए भी यूज। टेस्टिंग यूजिंग बैसिलस सबटिलिस नाइजर, ये जो ऑर्गेनिज्म इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर, BI बायोलॉजिकल इंडिकेटर। अगर इथिलीन ऑक्साइड में समझो मैंने ये फ्लास्क को स्टरलाइज करना है, फ्लास्क को स्टरलाइज करना है, ये कोनिकल फ्लास्क है मेरा और कोनिकल फ्लास्क मेरे को स्टरलाइज हुआ है नहीं कैसे पता चलेगा? तो वही क्या करूँगा, इस ऑर्गेनिज्म की एक पाउच ले लूँगा, एक पुड़िया ले लूँगा, पुड़िया, और उसके ऊपर चिपका दूंगा और इसके अंदर के ये ऑर्गेनिज्म मर गए तो दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। किसके वजह से? इथिलीन ऑक्साइड की वजह से। डिसएडवांटेज क्या है? टॉक्सिक, इरिटेटिंग टू द आइज एंड स्किन, हाईली फ्लेमेबल है, म्यूटाजेनिक है, कैंसर हो जाता है इथिलीन ऑक्साइड को इनहेल करने से, तो ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट मटेरियल बीटा प्रोपियोलैक्टम। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? It is also alkylating agent and act through alkylation of carboxyl and hydroxyl group. You all are aware that amino acids contain these groups, carboxyl group, COOH group, and hydroxyl group, that is OH group, isn't it? So alkylation takes place at this place. Okay. Properties, these are the colorless liquid with pungent, slightly sweetish smell. उसका sweet smell है. Condensation of product of ketane with formaldehyde. It is an effective sporicidal agent and has broad spectrum activity, that is 2% is used as a sterilization of biological product. Sporicidal है, स्पोर को भी मार सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है इसकी। उसके बाद it is more efficient in fumigation with than that of formaldehyde. It is also used for sterilization of vaccine को स्टरलाइजेशन के लिए, टिश्यू ग्राफ्ट को स्टरलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए और एंजाइम को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट हैज़ पुअर पेनिट्रेशन पावर एंड कार्सिनोजेनिक, इससे भी कैंसर होता है, इससे भी कैंसर हो जाता है। सो गाइज दिस इज अबाउट फर्स्ट पार्ट। अब आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिसइंफेक्शन प्रोसेस। तो ये हो गई सारी डिसइंफेक्शन की, केमिकल डिसइंफेक्शन की प्रोसेसेस। मैं इसके नोट्स आपके ग्रुप पे भेज देता हूँ। थैंक यू, गुड डे।